राहत ये दिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle entre le calife et les missionnaires basés ici au Royaume-Uni. Mais nous démarrons l'émission avec une rencontre virtuelle avec les membres de la Jamaat du Bangladesh. Sa sainteté le calife, qu'Allah soit son soutien, a accordé au bureau central de la Jamaat du Bangladesh une rencontre virtuelle samedi dernier. Les responsables du bureau central étaient réunis dans le complexe de la mosquée Darut Tabligh à Dhaka, le siège national de la communauté Ahmadiyya au Bangladesh. Pendant plus d'une heure, les membres du bureau central ont présenté des rapports sur leurs départements respectifs. Sa sainteté le calife a aussi souligné l'importance de contacter les politiques et les personnalités importantes du pays afin de leur présenter les enseignements de la communauté Ahmadiyya. Beloved Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हाँ जी खाकसर अहमद तबशीर चौधरी, नेशनल सेक्रेटरी उमूर खारिजिया और सदर मजलिस अंसारुल्लाह. अच्छा माशाल्लाह. तो खारिजिया के कितने ताल्लुकात हैं आपके? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ताल्लुकात? हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपके कांटेक्ट है? जी हुजूर, सबके साथ अभी तक till now we haven't done all, but regularly we have 15-20 MPs we have in connection, and we have connection with media, press, media, journalists, civil society people. We regularly interact with them. No, but what is the total number of your parliamentarians, national parliament members? We have total 345. So try to contact those parliamentarians also who are living in remote areas and in small areas. They can better understand and listen to you, instead of contacting those who are living in Dhaka only. We have planned and we have published a introductory booklet, for a pictorial booklet of Jamaat activity, and we have started distributing this to different people. Each and every parliamentarian should have your introductory booklet or whatever it is. Small brochures on peace and what is the Islamic teaching and what the Jamaat Ahmadiyya is doing. ठीक है ना? Yes, sir. We also distributed your Pathway to Peace, the World Crisis and Pathway to Peace. We also distributed this. Yes. ठीक है. À maintes reprises, sa sainteté le calife a expliqué comment aider les musulmans ahmadis à trouver des emplois convenables. बांग्लादेश में तो काफ़ी एजेंसीज ऐसी हैं जिनके ज़रिए से अगर कांटेक्ट इनका सही हो तो वो हेल्पफुल हो सकती हैं इनके अहमदियों को रोज़गार दिलवाने में. तो रोज़गार दिलाने की कोशिश करनी चाहिए इनको अहमदियों को. ठीक है? Beloved Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bashiruddin Afzal Ahmad Khan Chaudhary. I am looking after the office of Sanat wa Tijarat. Sanat wa Tijarat. Acha, mashallah. So, what help do you extend to the members of the Jamaat with regards to Sanat wa Tijarat? Huzur, people are more interested about getting a job rather than going for business. Concentrate and emphasize more on those MD members who are living in remote and rural areas. So if they get job or they get better job opportunities, or at least they find some type of help so that they can be helpful in cotton industry, I think that will be a good contribution from your side towards MD members. During the mulaqat, the secretary responsible for promoting the study of the Holy Quran was instructed to increase the number of people dedicating their time and services to teach the Holy Quran across the country. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हुजूर. हाँ जी. मेरा नाम इंसान अली फ़कीर. मैं तालीमुल कुरान और वक्फ अर्जी दफ्तर में खिदमत करने की तौफीक. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमला मेंबरान में से कितने लोग हैं जो वक्फ अर्जी करते हैं? हर आमला मेंबर को कहें 2-2 हफ्ते वक्फ अर्जी करो और इनको तालीमुल कुरान इनसे करवाया करें इंशाल्लाह. ठीक है इंशाल्लाह. और कितने क्या वक्फ अर्जी का कितना टारगेट है आपका इस साल का?
इस साल का कम से कम 10 जमात में वक्फ अर्जी के लिए भेज दूंगा। नहीं, क्योंकि 1000, हालात अच्छे इस साल 1000 वक्फ अर्जी चाहिए। इंशाल्लाह एक दुआ हजार करें। 1000 लोग तलाश करें जो 2 हफ्ते के लिए वक्फ अर्जी करें। टारगेट आपका ये है कि जनवरी का महीना जा रहा है, बकाया 6 महीने रह गए, इस 6 महीने में 1000 लोगों को वक्फ अर्जी करना चाहिए 2 हफ्ते के लिए। ठीक, इंशाल्लाह आप दुआ करें। इंशाल्लाह हाँ, अब दुआ करें, आप मैं कोशिश कोशिश करें। करूंगा। चलो। जी जी इंशाल्लाह। Le jour suivant, Sa Sainteté le Calife a donné des instructions aux missionnaires du Royaume-Uni. हाँ जी, क्या फरमाते हैं इमाम साहब? हमारे फील्ड में जो मुबल्लिगीन काम कर रहे हैं वो उनकी तादाद 31 है, 31, और दफातर में काम करने वाले 10 हैं, तो कुल 41 हैं। अच्छा, तो आज इस मजलिस में उनमें से 18 हाजिर हैं। जो दफातर में काम कर रहे हैं वो मुतलका दफातर के मतहत हैं या वो भी आपको कोई रिपोर्ट देते हैं? दफातर में जो काम कर रहे हैं उनको भी बाज़ जगह जहाँ मिशनरीज़ नहीं है, यहाँ जहाँ नमाज सेंटर हैं और वहाँ सदर जमात या लोकल जमात वाला नमाज सेंटर में नमाज़ पढ़ाते हैं, वहाँ इन लोगों की भी ड्यूटी लगाए ना, जाया करें कि उनको एक नमाज वहाँ पढ़ें और वहाँ पढ़ा दें जो आजकल के हालात के मुताबिक जितनी पाबंदी से किया जा सकता है, या अगर कोई दर्स है तो दर्स भी दिया जा सकता है। दर्स बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है आपके मसाजिद में जब से ये कोविड का मसला शुरू हुआ है। हालांकि सुबह का दर्स 5-7 मिनट का तफसीर का दिया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने यहाँ मस्जिद मुबारक में तो बंद नहीं किया। यहाँ तो जो मस्जिद, यहाँ जामिया के जो पिछले साल पास हुए थे तलबा, उनसे मैं रोज़ाना 2-2 दिन हर एक की ड्यूटी लगाई हुई है, दर्स देते हैं वो तफसीर कबीर का। तो आप लोग भी दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। जब कॉन्ग्रीगेशन के ऊपर, वर्शिप प्लेस के ऊपर पाबंदी नहीं है तो एक हद तक तो उस प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए, पूरी सही तरह ऑब्ज़र्व करते हुए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो काम जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिल्कुल ही बैठना ना जाएं कि कल को पता नहीं लगे कि दर्स भी कोई चीज़ होती थी। जी ठीक है, इंशाल्लाह इसके मुताबिक करेंगे, कल से ही हो जाए। या तो एक तरफ चले जाते हैं या दूसरी तरफ चले जाते हैं, या हन्ने या बन्ने, बीच का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। मस्जिदों में हीटिंग का निज़ाम अच्छा करें, या जो नमाज सेंटर हैं हीटिंग का निज़ाम अच्छा करें, लेकिन साथ ही थोड़ी सी खिड़की भी खुली होनी चाहिए ताकि हवा ताज़ा आती रहे। आजकल सर्दी बहुत है, आपके यहाँ जो टेम्परेचर लंदन में है उससे 2 डिग्री कम ही होता है यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा खिड़कियाँ खोल के रखते हैं दफ्तरों की। इसलिए बहरहाल उसको सामने रखते हुए, एहतियात करते हुए, फिर मुरब्बियान जो हैं जब दर्स देने आते हैं या पब्लिक में आते हैं, उनके लिए ये भी बता दें उनको कि नाक में विक्स लगा के और मास्क पूरी तरह पहन के, जो भी गवर्नमेंट का मुकर्रर शुदा प्रोटोकॉल है उसको ऑब्ज़र्व करते हुए आया करें। जी इंशाल्लाह। नमाज़ें तो पढ़ी जा सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। जब हुकूमत ने नहीं रोका, जब हुकूमत ने रोका था तब तक ठीक था, जब उन्होंने थोड़ी सी खुली छुट्टी दी है तो हम लोग भी एहतियात के साथ, ये हमारा एमडी का यही तो काम है कि पूरी तरह कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं उठाना चाहिए, ना ये कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी अमल ना करें। बाज़ारों में फिर नहीं फिरना चाहिए, बाज़ारों में फिरने से रोकना चाहिए और नसीहत करते रहना चाहिए जमात के अफराद को, हर मुरब्बी को अपने अपने इलाके में, कि बिला वजह सड़कों पे ना फिरें, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। पार्क में जाना है तो वहाँ भी अपना पूरा जो सोशल डिस्टेंस वगैरह का उन्होंने वाज़े तौर पे हिदायत दी हुई, उसके मुताबिक काम करें, हैं। जी बाकी ये है कि नमाज़ों पे तो आ सकते हैं और वहाँ आके तो फासले से पढ़नी है तो इंशाअल्लाह ताला ठीक है। आप लोग तो जानमाज भी रखते हैं कि जानमाज लेके आए साथ, अपनी अपनी जानमाज़ें साथ लेके आया करें, या कपड़ा लेके आया करें सजदे की जगह पे रखने के लिए कम से कम। दूसरी ये है कि मस्जिदों में जो कारपेट हैं उनके ऊपर रोज़ाना हूवर फिरना चाहिए, वो भी ड्यूटी लगाएं किसी न किसी खादम की, कि मस्जिदें इन दिनों में ख़ास तौर पर रोज़ाना साफ़ हों। और मस्जिद में रोज़ाना सुबह को या शाम को, बेहतर यह है कि शाम को धूनी दी जाए, रात को जब इशा की नमाज़ पढ़ा लें तो फिर धूनी देने का इंतज़ाम हो।
हर मस्जिद में धुनी दी जाए, वहाँ मिल जाती है धुनी आजकल। तो आपको ईस्ट लंदन में तो हर जगह मिल जाती है, साउथ हॉल में मिल जाती है, बल्कि धुनी लेके तो मस्जिद में धुनी देनी चाहिए। मस्जिद बंद करें धुनी देने के बाद अच्छी तरह। जहाँ फायर अलार्म लगे हुए हैं वहाँ पहले आपको पता होना चाहिए कि फायर अलार्म है और धुनी दे रहे हैं, तो उसका इंतज़ाम पहले ही कर लें। ठीक है जी जी हजूर। हजूर साउथ हॉल का थोड़ा सा सूरत हाल बदल गई, वो ये है कि हमें कानून लोकल सतह पे काउंसिल की तरफ से आया है ख़त के उन्होंने गुजारिश की है कि तमाम इबादत गाहें जितनी भी साउथ हॉल में उनको बंद कर दिया जाए। तो क्योंकि वहाँ गुरुद्वारे बहुत हैं। अगर काउंसिल की तरफ से यह हिदायत आई है कि बंद कर दिया जाए तो ठीक है, बंद कर दें, लेकिन उनसे पूछ लें। गवर्नमेंट ने तो ये ऐलान नहीं अभी किया, जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होगा तो फिर बंद कर दें। लेकिन फिर ये है कि फजर के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, जब ऑनलाइन बाकी काम भी कर लेते हैं तो जो करीब करीब के घर हैं जहाँ या तो हर घर में दर्स का इंतज़ाम हो और पता हो कि कितना हिस्सा दर्स का देना है रोज़ाना, हर एक को लिख के भेज दें कि ये जिनके घरों में नमाज़ें होती हैं फिर वो ये हिस्सा तफसीर कबीर का इतना हिस्सा दर्स का दिया करें रोज़ाना हैं। और जो नहीं दे सकते उनके लिए फिर आपका इंतज़ाम होना चाहिए कि आप बैठ के दे दें और वो ऑनलाइन सुन लिया करें। अब तो फ़ोन पे भी सुना जा सकता है और इंटरनेट पे भी सुना जा सकता है, आईपैड वगैरह पे हर जगह सुना जा सकता है अगर आपके ऑनलाइन इंतज़ाम है तो। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे आराम से आप कर सकते हैं इंतज़ाम। और जो अव्वल तो जो दे सकते हैं वो ख़ुद ही दे लें दर्स। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि बंद कर दें तो बंद कर दें, लेकिन पहले सही तरह इसकी तहकीकात कर लें और पता कर लें कि डिटेल्स क्या हैं इसकी। ठीक है, फिर करें। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम आसिम हाशमी है। हाशमी साहब बैठ जाएं। क्या फरमाते हो हाशमी साहब? तबलीग डिपार्टमेंट में तकरीरी है हुजूर। तबलीग में? जी। अच्छा, तो आजकल तबलीग किस तरह करते हैं आप लोग? हुजूर आजकल तो हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। जैसे हर हफ्ते तबलीग ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं और रीजनल तबलीग ट्रेनिंग भी हो रही है माहाना। कितने बैतों का टारगेट रखा हुआ है इस साल? हुजूर इस साल का टारगेट 150 है और अभी जुलाई से दिसंबर तक 64 बैतें हो गई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें से शादी कराने वाले की कितनी बैतें हैं और जो पढ़ लिख के समझ के आए हैं उनकी बैतें कितनी हैं? ज़्यादा तादाद की वही है जो पढ़ लिख के आए हैं हुजूर। अच्छा जी। अच्छा, चलो फिर आगे। अरे हुजूर, खाकसार का नाम राहील अहमद है और तारीख़ डिपार्टमेंट यूके में खिदमत की तौफीक पा रहा हूँ। क्या कहते हो? जी हुजूर, अल्लाह ताला के फजल से पहला वॉल्यूम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मगरिब के अंदर जो पैगाम पहुँचा है और उस सिलसिले में तहकीक करने की कोशिश मिली है, तौफीक मिली है। और ये 300 सफ़ात पर मुश्तमिल पहला वॉल्यूम बहुत जल्द जो है वो छपने वाला है, रिव्यू हो रहा है और उसकी करेक्शंस कर रहा हूँ इस वक्त। इसके अलावा हुजूर वॉइस ऑफ इस्लाम में एज ए प्रेजेंटर प्रेजेंट करने की तौफीक मिल रही है। इसी तरह खुदा मुल्हमदिया तबलीग डिपार्टमेंट में भी कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा है, तहकीकी मज़मून लिखते रहा करो, डिसअपॉइंट ना होना। कोई शाया मज़मून होता है या नहीं होता, किसी को पसंद आता है या नहीं होता। जिस तरह तहकीक कर रहे हो अपनी तहकीक करो और लिखते रहा करो मज़मून। ठीक है जी ज़रूर। चलो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मंसूर अहमद चट्टा। अच्छा चट्टा साहब, तशरीफ रखो। हौसलों में? सर मैं हेस जमात में हूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ कितने आते हैं नमाज़ पढ़ने लोग? सर हमारे यानी आजकल 5 से 8 अफराद हैं जो आते हैं, यानी वही हैं जो फजर पर भी आते हैं, ज़ोर असर पर भी और मगरिब शाह पर भी। नौजवानों को ज़्यादा लाने की कोशिश करें ना करीब। इन दिनों में कम से कम नौजवानों को नमाज़ों का आदी बना दें। ठीक है। और बाकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? सर जो बच्चों की तालीम और तरबियत खुदाम की नोमुबा इनकी उसी तरह जारी है जिस तरह लॉकडाउन से पहले भी थी, मगर फ़र्क ये है कि अब अल्लाह के फजल से ऑनलाइन करने की वजह से हाज़री ज़्यादा होती है और ज़्यादा अतफ़ाल और खुदाम इन क्लासेस में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हुज़ूर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा ये हमारे यंग मुरब्बियान के बारे में कि अल्लाह के फजल से हुज़ूर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वक्त किया इसलिए काम अच्छा करना
हाँ हुजूर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो नई तालीम एकेडमी है उसमें भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, और हमारी जो वीडियोस बन रही हैं तरबीती वीडियोस उनमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वॉइस ऑफ इस्लाम में भी बहुत अच्छा हमारे साथ ये तावन करते हैं। तो अल्लाह के फजल से, और जमातों लोकल जमातों में तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये काम भी कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। Vers la fin de la réunion, Sa Sainteté le Calife a donné des indications sur l'importance d'établir une relation personnelle avec Allah. कम से कम आजकल तो वक्त काफ़ी मिल जाता है, 1 घंटा तो कोई मुश्किल नहीं है आजकल के हालात के लिए। आप लोगों को 1 घंटा तो नफल पढ़ने चाहिए सुबह, और बाकी आम दिनों में भी कोशिश करके इसको मेंटेन रखें। असल चीज़ तो दुआ है, दुआ से काम होने हैं इंशाअल्लाह ताला। दुआओं की तरफ तवज्जो दें, अपना ताल्लुक़ बिल्ला को बढ़ाएं, तो यही असल चीज़ है हमारे लिए। दुआओं और इस्तिग़फ़ार पे जोर दें ज़्यादा। अमीर साहब, आप लोग वक्फ़े ईद में नंबर 1 आ ही गए इस दफ़ा दोबारा। हुजूर आपकी दुआओं के साथ जी। काफ़ी कोशिश की है आप लोगों ने, जितना फ़र्क डाला है ना, काफ़ी बड़ी कलेक्शन की है आप लोगों ने। वैसे जर्मनी वालों ने भी इतनी ही तकरीबन कलेक्शन कर ली थी, अगर आप थोड़ी करते ना तो शायद जर्मनी ऊपर आ जाता। लेकिन आपकी इस दफ़ा मेहनत ज़्यादा थी, उसकी वजह से मैं जो है वो जर्मनी अपनी बावजूद पूरी कोशिश के पीछे ही रहा है, आपसे काफ़ी पीछे रह गया। इसमें लजना का भी मैं देख रहा था, लजना ने कि जो तहरीक ईद का कलेक्शन थी वो 6,90,000 थी, और वक्फ़े ईद की कलेक्शन 7,05,000 थी। तो लजना ने वक्फ़े ईद का पाया, लजना ने यहाँ ऊंचा कर दिया। अभी आप लोग रह गए, लेकिन लजना ने काफ़ी मेहनत की है। इस वक्त लगता है आप लोगों ने भी लजना से कुछ सीखा है, मेहनत करना। एक चीज़ गलत कर दी थी कि जो शुरू में कह दिया था आप लोगों ने, एक बीच में मुहिम चलाई थी कि ये इसके लिए जो IEEE को हम देते हैं, इसमें से फ़लाँ देते हैं, वो गलत था। हमारे इस मकासद के लिए मैं खुतबे में बयान कर चुका हूँ क्या क्या मकासद हैं। हाँ, एक हिस्सा उनको भी मिल जाता है, लेकिन मसाजिद हैं, मिशन हाउस हैं, तबलीग है, इशात है, बहुत सारा रकम जो अफ्रीका में जाती है इसमें से ख़र्च होके। तो अफ्रीका में होता है बहुत ख़र्च, लेकिन ये कि स्पेसिफ़िकली IEEE के लिए होता है, ये नहीं होता। ठीक है, हाँ चलें, हो गया। आपके मस्जिद बैतुल फतूह कहाँ तक पहुँचा है काम? हुजूर काफ़ी अल्लाह के फज़ल से एडवांस चल रहा है। और अब वो कब तक बन रहा है, मुकम्मल हो रहा है? हुजूर ये हमारी बिल्डिंग तो अभी साल लग जाएगा सारा करते हुए, इसको फिनिश करते हुए। फिनिशिंग शुरू हो गई। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़ हो। इस वक्त यहाँ पर तस्वीर खींच के ले आते तो बैतुल फतूह की तस्वीर भी दिखा देते मुझे। चलें खैर जी जी, इंशाल्लाह अगले वीक हमारी है हुजूर, उसमें दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़ हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। C'était là les points forts de 2 rencontres virtuelles qui ont lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant avec notre dernière rubrique, un extrait du sermon du vendredi de cette semaine. Le calife a poursuivi sa série sur la vie et le caractère de Hazrat Ali radhiyallahu anhu dans son sermon du vendredi. À la fin de son sermon, il a annoncé qu'il lancerait la nouvelle chaîne de télévision MTA Ghana après les prières. MTA Ghana के नाम से अब एक नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है। ये घाना में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नशर होने वाला नया मुल्की टीवी चैनल होगा। MTA घाना सैटेलाइट डिश की ज़रूरत के बगैर एक आम एरियल के ज़रिए देखा जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि घाना के लोग बआसानी इस चैनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं, आम एंटीना पर भी। ये चैनल उसी जगह, उसी लोकेशन पर दस्तयाब होगा जहाँ घाना के दूसरे बड़े बड़े चैनल मौजूद हैं, और इस तरह मुल्क के तूल अर्ज़ में लाखों घरों तक इसकी रसाई होगी, और तमाम इलाके साउथ से लेकर नॉर्थ तक ये कवर करेगा इंशाल्लाह। घाना की मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी वहाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे, जिनमें अंग्रेज़ी, चुई, गा, हाउसा और दूसरी ज़बानें शामिल हैं। चैनल की ट्रांसमिशन और शेड्यूलिंग का काम वहाँ लजना की रज़ाकार और दीगर टीमें करेंगी। अखलाकी और तालीमी और तरबियती प्रोग्राम बनाए जाएंगे। MTA घाना मुल्क में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्लामी तालीमात के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ
वाहिद चैनल होगा इंशाअल्लाह ताला। एक जगह हमारे मुखालफिन रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला दूसरी जगह और कई रास्ते खोल देता है। ये है अल्लाह ताला के फजल जमात पर। इंशाअल्लाह ताला जो बंद रास्ते हैं वो भी खुलेंगे अपने वक्त पे इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ही साथ खुशी के भी सामान पहुँचा देता है। तो ये चैनल इंशाअल्लाह ताला उस मुल्क को कवर करेगा, बल्कि हमसायों को भी शायद कवर करेगा, कुछ इलाकों को इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने कहा, जुमे के बाद, नमाज़ों के बाद मैं इफ्ताह करूँगा इसका। ये जी शुरू हो गया। In this era, the Prophet Musa Islam was sent to establish and revive the teachings of the Holy Quran and the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And in today's world, it is MTA that is playing a very great and prominent role in spreading the truth. Welcome to Craft Corner. I welcome you to another production in our series, Islam and Science. I welcome you to the ladies' edition of Journey to Islam. Ameen. Assalamu alaikum warahmatullah.